नमस्कार, कहानी में जगत किशोर बटवाल आप सभी का अभिनंदन करते हुए स्वागत है। एक बार पुनः चलते हैं BR मॉडर्न स्कूल पौड़ी में, जहां हम देखेंगे आज AI एग्जीबिशन। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक परिवर्तनकारी तकनीक है जो मशीनों को इंसानों जैसे समस्या समाधान कार्य करने में सक्षम बनाती है। छवियों को पहचानने और रचनात्मकता सामग्री तैयार करने से लेकर डेटा आधारित भविष्यवाणी करने तक AI व्यवसायों को बड़े पैमाने पर बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। Good morning, I am Abhinav Negi and he is my partner Abhishek Khanduri, and we both are here to present our topic or our project Canteen Express. The main motive of making this project were those people who do not pay for their meal or take benefit of rush by taking a free meal. So the solution to that problem was Canteen Express. We have a photo identity card which is very limited, and we have RFID card inserted in that. We have to just insert our card here. Now we have to just enter our password. This password is 3250. Here is the meal or the menu, we can say. 1 for samosa, 2 for tea, 3rd for chole and 4 for water. For example, we need samosa, so we have to just press 1 and done. Thank you, enjoy your meal. After placing order, we can see our order here. We can see our order here. This is our sales. Now, here we can see our project sales. There is no sale yet. After the student order for food, here we can see that this is my name, Abhishek. I ordered chole, samosa. And here's my partner, Abhinav, chole and pastry. He ordered chole and pastry. So we can get a record of students, what they order and their health chart also. What is the student condition is right now. So this project is help us for maintaining the balance of the canteen, how much we get the total. Thank you. Good morning, sir. My name is Prerita Bartwal and I am from class 6 Chamla. And today we have made this project named as Basket Rush. So this is a game which strengthens the education through recreational activities. And as you can see that here is a basket which is moving continuously. And you have to throw a ball inside it. And if you pass all the 3 rounds that we will give you a reward. Like it works like this. It produces a sound, so it strengthens the physical, mental and strategic thinking of children living in today's generation as they are engaged in mobile phones and internet. Thank you. तो गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज अनुभ्या गरकवार। तो ये हमारा है एक कोऑर्डिनेशन गेम। ये हमने AI की मदद से बनाया, अब हमारे टीचर्स की हेल्प से। तो इस गेम में ऐसा है कि यहाँ पे जैसे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, जब यहाँ पे सबसे हाईएस्ट नंबर आएगा तब आपको सेंसर को थंब से प्रेस करना है, ठीक है। अब जब हाईएस्ट नंबर आएगा प्रेस करना। जैसे एक ही हो गया, अब एक और बार, एक और टाइम। जितना हमारा यहाँ पे स्कोर दिखाएगा ना, उतना ऊपर ही हमारा मंकी चले जाएगा। वो एक्चुअली यहाँ की हाइट थोड़ी कम है ना, तो इसलिए वो रोटेट वहीं पे कर रहा है। Good morning, sir. My name is Sarthak Nautiyal and he is my teammate Gaurav Unyal. We are from class 11 and हमने यहाँ पर बना रखा है गेम मैथमेटिकल मल्टीप्लेयर बूस्टर है। फिर इसमें यहाँ पर LCD में क्वेश्चंस डिस्प्ले होते जाएंगे। इधर में ये LCD लगाई हमने, इसमें क्वेश्चंस डिस्प्ले होते जाएंगे जो कि सिर्फ 10 सेकंड के लिए रहेंगे। हमें उतने टाइम में यहाँ पर इनमें कीपैड में सही आंसर टाइप करना है। जो प्लेयर भी पहले सही आंसर टाइप करेगा उस साइड को ये ऊपर सर्वो मोटर लगी है, उस साइड को ये सर्वो मोटर मुड़ेगी और जिस साइड भी पहले ये 80 डिग्री में मुड़ जाएगी, जिस साइड को भी, वो प्लेयर जीत जाएगा। हमारे जो प्रोजेक्ट का नाम है वो है हरित कोश। सो जैसे कि आपको पता है कि कोविड के अराउंड पे जो गवर्नमेंट थी उसने पॉली हाउस के मतलब सब्सिडी थी वो अराउंड 80% कर दी थी। इसकी वजह से सबने पॉली हाउस तो अपने उसमें फार्म्स में लगा दिए, पर जो पॉली हाउस का मैनेजमेंट था वो बड़ा हार्ड होता है क्योंकि
उसके अंदर गैस कभी एक्सचेंज ज्यादा हो जाता है, कभी टेम्परेचर उसका ज्यादा बढ़ जाता है और कभी कभी मतलब सूटेबल नहीं होती है एक जगह की कंडीशंस की, मतलब एक पॉलीहाउसेस को पूरा केटर कर पाए। इसलिए हमने एक जनरलाइज्ड हमने एक सर्किट बनाया है जो कि ऑलमोस्ट हर केस में आपकी हेल्प कर सकता है। हमने इसमें गैस सेंसर और टेम्परेचर सेंसर लगा रखा है, मतलब प्लांट्स में अगर कोई भी हार्मफुल गैस वहाँ पे प्रेजेंट होगी जिनसे उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस टाइम पे हम ये रूफ ओपन कर सकते हैं और टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को उसके अकॉर्डिंग मॉनिटर कर सकते हैं। इसके साथ हमने यहाँ पे रेन वाटर सेंसर लगाया है, जो कि बाहर अगर किसी भी तरह की प्रेसिपिटेशन या बारिश होगी तो किसान को उसके मोबाइल के डैशबोर्ड में पता चल जाएगा और ये छत ऑटोमेटिकली खोली जा सकती है। उसके साथ ही हमने यहाँ पे LDRs लगाया है, जो कि लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करता है और अगर लाइट क्रॉप के फेवरेबल कंडीशंस में नहीं है तो यहाँ आर्टिफिशियल लाइटनिंग हो सकती है और उस लाइट की वेवलेंथ भी प्लांट्स को जितनी वेवलेंथ चाहिए उसी के हिसाब से। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया है, जो कि बारिश के पानी को बर्बाद नहीं होने देगा और वो बारिश का पानी इस पूरे क्रॉप्स को इरिगेट करेगा, फिर वापस इस पाइप के थ्रू वापस से उसी सिस्टम के अंदर आएगा। ये एक बहुत सस्टेनेबल प्रोजेक्ट है। आपने भी बहुत ध्यान देना चाहिए, उससे बच्चे का एप्रिशिएशन होता है और सभी के लिए अच्छा है। और यहाँ पे अभी एक मीडिया ने यहाँ पर उसको यहाँ पर सम्मानित किया गया है, घर की बात है हमारे बड़े के लिए। और लेकिन मैं एक चीज से बहुत दुखी हूँ, क्योंकि हम भाषणबाजी बहुत देते हैं, भाषणबाजी बहुत सुनते हैं, लेकिन हम अवेयर होते हुए, पढ़ा लिखे होते हुए भी संदेह। My name is Amira from class 6. Good morning. This is a project named Shoot Down. Firstly, I tell you how to play this game. So basically, in this game, it's a house. In the upper of the house, it's a drone. You have to shoot the drone with the help of missile gun. But the drone is keep moving with the help of joystick. जैसे खड़े हुए हैं वहाँ पर लोग हैं। तो ये संकल्प है कि लोग चाहिए और अपने बच्चे को Good morning, sir. So this is a project named as Catch the Falling. So me and my some teammates make this project. So in which you have to move the basket in front of the sensor. So this is the basket which you have to move in front of this ultrasonic sensor, and you have to catch the fruits that are falling in the screen. You can see there. You can see the high scores and the scores that are you made. काम कर रही है। एक बहुत ये है कि ये It improves your hand-eye coordinations and concentration level. Also, children will do physical activity by playing this game. We make this project because the nowadays children are playing very virtual games in their mobile phone. So by this project, they can connect their physical body. Good morning, sir. I am Ridhima from 8th Chandrasekhar, and today I am here with my team member. She is Priya Malasi and she is Aradhya Negi. And here we had made this project named as RFID dustbin. Here we have to throw the garbage in the dustbin, and it's mainly aimed to clean our environment or to increase the sustainability. Now my team member Priya Malasi explained you about its work. So sir, as we are well aware that in today's time the children are not aware of throwing the garbage at the correct bins. So for the safety of that, we had come up with this model named as Clean Code. In this, every student will be given a RFID card or their school card, which they have to scan at this RFID sensor and have to choose the correct bin, and then they will get the just 20 points. At the end of the week or at end of the month, the admin can scan his or her card at the sensor and can see that who is the top scorer of the month, and he or she can be given some prizes or awards, so that they will be the students will get aware of throwing the garbage at correct bins. Now my team partner Aradhya will tell you about the components of this project. At last, I'm going to tell you about some components that are used in our project, such as servo motor, RFID, LED screen, Arduino Uno and power bank. Thank you. मॉर्निंग सर, ये लोग मेरे टीममेट्स है। मेरा नाम शिवम है, ये नमन, ये अंशुल एंड ये आरव। आप देख ही सकते हैं हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है। ये वर्चुअल वर्ल्ड को रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर रहा है। जैसे आप देख सकते हैं कि सेंसर लगाई डिटेक्ट कर रहा है कि आगे जमीन नहीं है, तो वो अपना पाथ चेंज कर ले रहा है। जैसे आप आजकल आपको पता ही होगा कि बहुत सारे जो कार एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो वो इससे बचा सकते हैं, क्योंकि हम आगे लगाएं तो जो अगर वो आगे डिटेक्ट करेगा आगे जमीन में, या तो वो ब्रेक लगा देगा या तो वो फिर अपना पाथ चेंज कर लेगा। ऐसे करके जो हमारी जानें वो बच सकती है।
ऐसे छोटे छोटे अप्लायंस से हमारी जानें बच सकती है, तो क्यों ना हम इसे इस्तेमाल करें और अपनी जिंदगियां बचाएं। ये बहुत ज्यादा यूजफुल है हमारे लिए और हम लोग इसे यूज करेंगे और हमने इसे बनाया है और हम अगले साल हम ये ट्राई करेंगे कि हम इसे और ज्यादा एडवांस कर पाए, ताकि जो हम अपने देश को ऐसी चीजें दे पाए जिससे हमारे देश का नाम रोशन हो और हमारे सबकी जान बचे। Good morning, sir. My name is Ananya Negi and she is Aradhya Negi. So it is our project named Expression Bot. It is a game in which there are 4 types of expressions: happy, sad, angry and scary. So now to play this game, firstly you will tilt the bot backward for 4 seconds and then it shows game begins and any one expression is shown. So you will tilt into its correct side under 3 seconds. If it is correct, so you will win the game and we will give you a reward. Thank you. My name is Shan Rawat from class 9 Darwin, and he's the partner Krishna Rastogi. So we have made this project about smart fair. Like we go to Kandola Mela, we have seen that many people are standing by there, maintaining the people's coming inside and outside. So we have made this project to maintain and automate the task done by the human to make it easy. Now Krishna Rastogi will tell you about it. Now he will tell you about it. So sir, when 100 people enter in this fair, it automatically close. For example, there is 100 and the barricade automatically close, and when the people come out from that side, it automatically opens, and we also insert a game in this project. So any of you come and play this game. To control the ball, this is about to control the ball in front of in it. So there are 2 force sensors. One is here, one is here. We have to press it and it will tilt. So we have to balance the ball here. So you can play it. So वो आपको press करना है. The game starts now. The game over. You go. Good morning, sir. I am Garvik from class 6th, and firstly we welcome you in the science exhibition held in our school. So I am Garvik Khalrial from class 6th, and this is our project response talk, in which there are 4 LEDs and 4 touch sensors. You have to touch the touch sensor, place check below the LEDs, and these LEDs will glow randomly. If you touch correct, you gain a point, and if you touch incorrect, you lose a point, and if you didn't touch, you lose a point, and your score will be displayed here. Thank you. सर प्ले जैसे जिधर चलेगा ना उधर आपको टच करना है। जिधर चलेगा वहाँ टच करना। हाँ उसके नीचे इस बटन में एक बारी में टच करना चाहिए, हो जाएगा। सिंगल आदमी सिंगल आदमी धीरे धीरे तेज होएगा। आपको पॉइंट 0 पॉइंट। My name is Pratibha and she is Arohi. This is our project which is named as संजीवनी। संजीवनी इसका नाम ऐसे हुआ जैसे कि जो रामायण थी उसमें हनुमान जी ने लक्ष्मण जी की जान बचाई थी संजीवनी बूटी लाके, उसी तरह ये हमारी संजीवनी बूढ़े लोगों की या जो दवाई लेना भूल जाते हैं उनकी जान बचाता है। तो हमने इसमें ये LCD लगाई है जिसमें क्या होगा, टाइम शो होगा, और टाइम हमने इसमें 8 करना तो करना हमने 8 बजे का जैसे इसमें टाइम सेट करा है, तो जैसे ही 8 बजेंगी यहाँ से एक प्लेट बाहर आ जाएगी, और फिर जैसे ही वो दवाई जो पर्सन होगा वो दवाई उठाएगा, उसके बाद उसको अपना हाथ यहाँ ऐसे रखना है तो उसकी प्लेट अंदर चली जाएगी। अभी आपको करके भी दिखाते हैं। जैसे ये बाहर आ गई है तो स्पीकर से आवाज आएगी कि आपकी दवाई का समय हो गया है, और जब वो अपनी दवाई ले लेगा तो फिर उससे वहाँ पे अपना हाथ लगाना है तो अपनी उसकी ट्रे अंदर चली जाएगी। ऐसे ही दूसरे टाइम में भी होगा, जब दोबारा दवाई का टाइम होगा तो दोबारा से दूसरी प्लेट बाहर आएगी, और उसके बाद जैसे ही वो दवाई करेगा तो उसको सेम प्रोसेस करनी है, अपना हाथ यहाँ लगाना है और वो ट्रे अंदर चली जाएगी। As you know that nowadays no place is clean and well sanitized. You can find garbage everywhere, and these things are not only limited to our homes. It's spread all over the earth, near our houses, streets,
and many more places. To save our from all these kind of things, we have created a small but very effective project named the Dragon Sword. If you are thinking that why I have named it so, then let me tell you. The Dragon Sword means the dragon's terror, or you can say the dragon's fear. So, if you wanna hear the backstory, you can ask them. Time ago, एक village था जो एक्चुअली हर जगह कचरा फेंक देते थे जाके लोग, तो वो कचरा मिल के एक ड्रैगन की फॉर्म में बना, और वो ड्रैगन कचरा खा के बड़ा हुआ, और वो उसके बाद विलेजेस डिस्ट्रॉय करने लग गया, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर उसके बाद अब इस जो ड्रैगन है उसको आपको हराने के लिए आपको ये अब गेम खेलना है। तो कूड़ा खाते खाते वो ड्रैगन क्या कहते हैं, अब उस कूड़े से शक्ति लेने लग गया, और वो कूड़ा फैलाने के लिए इधर से उधर यहाँ से वहां सारे जगह के गांव बर्बाद करने लग गया। तो लोग उससे काफी परेशान हो गए थे, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। तो एक दिन उस गांव में आए कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट लोग, तो वो लोग खुद से साफ सफाई करके लोगों को अवेयर करके उन्होंने वो गांव साफ कर दिया और साफ सुथरा बना दिया काफी हद तक, जिससे वो ड्रैगन कमजोर हो गया। तो जब वो कमजोर हुआ तो उन इन्वायरमेंटलिस्ट लोगों ने उसे इस गुफा में बंद कर दिया। तो आप इस गेम को खेल सकते हैं। तो आपको इसे खेलने के लिए एक रिडल भी मिलेगी। पे देख सकते हैं यहाँ पे एक रिडल रखी है, तो आपको इस रिडल को पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ चीजें रखी है जो इसका सही आंसर होगा रिडल का। तो अगर आपने इनमें से जो सही ऑब्जेक्ट है वो चूज किया है, तो आपको यहाँ पे जो ड्रैगन दिख रहा है तो आपको उसके LDR में चमकाना है, और अगर आपने सही आंसर चूज किया तो उसमें एक हाई फ्रीक्वेंसी की एक पतली सी साउंड आएगी। लेकिन अगर आपने गलत आंसर चूज किया है तो उसमें बीप 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 साउंड आएगा। So फॉर एग्जाम्पल मैंने ये टॉर्च ली है, तो मैं इसके LDR में चमकाऊंगी और मुझे इसके नीचे का ये ऑब्जेक्ट हटाना होगा। तो उसने जैसे ये हाई फ्रिक्वेंसी की साउंड दी है, तो मतलब मेरा आंसर सही था, और अब ये ड्रैगन फ्रीज हो जाएगा और ये खत्म हो गया है। तो ये हमने एक नॉर्मल सा प्रोजेक्ट बनाया है, इसमें ये बता सकते हैं ये ड्रैगन हमें इंडिकेट करता है कूड़े से होने वाली प्रॉब्लम। ये स्टोन वो करता है जिस चीज से प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कूड़ा। तो जैसे इसमें दे रखा है ये डिजीजेस कर सकता है, इन्वायरमेंटल हार्म टू इंडेंजर्ड स्पीसीज, जैसे कि ये जानवरों और प्लांट्स को प्रॉब्लम कर सकता है, बैड इम्पैक्ट इन सोसाइटी, ग्लोबल वार्मिंग कर सकता है, और हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं जैसे लोगों को अवेयर करके रिग्रेटिंग गार्बेज और प्रिवेंटेड फ्रॉम प्रॉपर्ली रिसाइकलिंग गार्बेज। हम गार्बेज को प्रॉपर्ली रिसाइकिल करके कूड़े से होने वाली प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकते हैं। और ये था हमारा प्रोजेक्ट द ड्रैगन स्वॉर्ड। थैंक यू सो मच। Kanak from class 8 Chandrasekhar, and this is our project named Crop Genius. And I am Ananya Rawat from class 8 Chandrasekhar. So we both are team Mind Squad. So in this project हमारे पास यहाँ पे है कि जो हमारे फार्मर्स हैं वो आजकल बहुत खेती करने से रुक रहे हैं क्योंकि उनको बहुत ज्यादा समस्याएं होती है। तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं एक स्मार्ट फार्मिंग इरिगेशन सिस्टम का, जो कि जब वाटर प्रोड्यूस करेगा हमारी क्रॉप्स को, जब एक पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे कि यहाँ पे हम सेट करेंगे एक टाइम को, जैसे कि ये LED डिस्प्ले है, हम यहाँ पे 8 o'clock हमने टाइम सेट किया है। जब वो यहाँ पे 8 o'clock होंगे तो वहां से वाटर आएगा और वो 5 seconds के लिए उन्हें वाटर प्लांट्स को वाटर दे देगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पे ऐसे 8 o'clock होगा तो वहां से पानी आने लग जाएगा। उसे हमने अभी सिर्फ 5 सेकंड के लिए सेट कर रखा है, बट अभी थोड़ी देर बाद अगर हमें 10 सेकंड के लिए पानी डालना है तो पानी 10 सेकंड के लिए आएगा। और हमने यहाँ पर 2 स्टोरेज भी बनाए हैं, एक है ड्राई स्टोरेज और एक है कोल्ड स्टोरेज। तो ये वाले ड्राई स्टोरेज में हम वो वाले रखेंगे जो क्रॉप्स होंगी वो जल्दी सड़ नहीं पाएंगी, और ये वाला जो स्टोरेज है इसमें हम वो वाले क्रॉप्स रखेंगे जो जल्दी से खराब हो जाती है, जैसे कि टमाटो वगैरह होंगी। तो अगर ये वाले इनमें कोई सा भी क्रॉप है जो सड़ जाती है तो फिर यहाँ पर एक रेड कलर की लाइट होगी, जैसे यहाँ पर अभी आ रही है। तो फिर वो रेड कलर की लाइट जो होगी, जो फार्मर है जैसे कि उसका वो घर है तो वो अपने घर से देख सकता है कि यहाँ पर कोई क्रॉप है जो खराब हो गई है, तो वो आएगा उसे हटा देगा। तो फिर ऐसे जो और क्रॉप होगी वो भी खराब भी नहीं होंगी। और इससे ये हमने मेनली इसलिए बनाया क्योंकि उत्तराखंड जो है उसमें बहुत पलायन हो रहा है, और पलायन भी इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो एनिमल्स हैं वो खेती खराब कर देते हैं, या फिर जो है वो उन्हें पानी डालने में दिक्कत होती है, या फिर उनकी कभी पूरी क्रॉप ही खराब हो सकती है। ये अगर हम एक बिग स्केल में बनाए तो हमारी इंडिया को एक बहुत अच्छी जीत दिला सकता है एक क्रॉप को वो करने में। और आप देख सकते हैं कि हमने लोगों को ज्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए एक प्रोजेक्ट के साथ साथ एक चार्ट भी बनाया है जिसमें हमने उसके फीचर्स और स्किल्स सब बताए हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक इरिगेशन,
ये ऑटोमेटिक इरिगेशन है जो कि वाटर देता है हमें, और जो एक है टाइम कंट्रोलिंग, हम इसका टाइम खुद ही सेट कर सकते हैं। और हमने यहाँ पे एक स्मार्ट ड्रेनेज सिस्टम भी बनाया है जिसमें जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो हमारे अच्छे से ड्रेन भी हो सकता है। और यहाँ पे हमने रॉटन फ्रूट का अलर्ट भी करा है, जैसे कि हमने यहाँ पे गैस सेंसर का यूज किया है, जिससे कोई सा भी फ्रूट होगा अगर वो खराब हो जाता है तो हमें पता चल जाएगा, जो फार्मर होगा उसे पहले ही पता चल जाएगा कि ये जो फ्रूट्स हैं वो खराब हो रहे हैं। और इसका मेन जो हमने ये बनाई है उत्तराखंड के लिए बनाई कि वहाँ का जो है पलायन भी कम हो सके। थैंक यू and have a marvelous day. This is our project. I hope you liked it. आज BR मॉडर्न स्कूल ने साइंस एग्जीबिशन और कॉमर्स ट्रेड फेयर रखा, जिसका मेन एम था कि बच्चों में साइंटिफिक स्किल्स और जो इनके बिजनेस स्किल्स हैं वो डेवलप हो। तो इसमें बहुत अच्छे मॉडल्स बच्चों ने बनाए, बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया। लेकिन हमारे जो AI के मॉडल्स थे टेक्निकल लैब में, वो मेन अट्रैक्शन रहे। उसमें भी बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके अपने मॉडल्स को बनाया है। और हमारी यही उम्मीद है, हमारी यही होप है कि बच्चे आगे भी इन प्रोजेक्ट को और अच्छा बनाएंगे।